स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड समझते हैं आइसोमरिज्म होता क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर एंड पी से पोजिशनल आइसोमर। Hello chums, how are you guys? So hope all of you are doing very great and doing very well in your life. I am your mentor, favorite dada or favorite mentor, Aniruddha sir, Aniruddha dada, whatever you want to call me, and you are watching NEET JEE with Alpha. So let us start our today's session, and in our session today we are going to study about isomerism. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं isomerism and तुम लोग जानते हो isomerism क्या है। मैं बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो करते हैं आइसोमरिज्म। और जैसे कि आप लोग जानते हो आइसोमरिज्म को हम लोग बेसिकली दो टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। ओके, पहला आइसोमरिज्म होता क्या है, चलो व्हाट इज आइसोमरिज्म? व्हेन टू और more than two molecule have similar formula, similar mass and similar number of atom. Okay, when two or more than two molecule will have same molecular formula, same number of atom, same mass, which is included in same molecular formula definitely, but different physical and chemical properties, different physical and chemical properties, okay, is known as isomerism. Achha, isomerism basically can be classified into two types, that is structural isomerism and stereoisomerism. Okay, and the structural isomerism can be classified into further sometimes ring chain isomer, tautomerism, structural isomerism can be classified into R, T, F, M, C, P, ring chain, tautomer, functional, F से functional, ओके चलो M से मेटामर, C से चेन आइसोमर एंड P से पोजिशनल आइसोमर, ओके। And stereoisomer can be classified into basically two types, configurational and conformational. We are going to study about these things in later part. Okay, chalo. Now first of all we are going to understand the concept of DBE, or double bond equivalent. If in question a certain formula is given, like like you can say C5H12, if this type of formula is given and they are asking how many isomers are possible for that formula, how you can find out how many isomers are possible for a certain given formula. So first of all you have to calculate the DBE. So sir, what is DBE? Double bond equivalent. What is the significance of finding DBE? The significance of finding DBE is, if you can calculate the DBE, then you will got to know that how many double bond can be possible with that certain formula, or how many ring can be possible with that certain formula, or how many triple bond can be drawn with that certain formula. Okay, so that's why calculating DBE is our first job, because we have to know how many double bond or how many rings or how many triple bond are present in that given formula. Okay, so how we can find DBE? Number of carbon minus number of hydrogen by 2 plus number of nitrogen by 2 plus 1. Suppose for that formula DBE is number of carbon is 5 minus number of hydrogen by 2, that is 12 by 2, plus number of nitrogen by 2, that is 0 by 2 plus 1, that is 5 minus 6 plus 0 plus 1, that is 0. DBE is 0. DBE 0 मतलब क्या है? DBE 0 मतलब है no double bond can be possible, no double bond can be drawn with this formula, or no triple bond can be drawn with this formula, or no ring can be drawn with this formula. Okay, chalo. Now first of all let's discuss about the alkane. Okay, suppose CH4, how many isomers are possible with this formula? Look,
Hydrogen does not have any significance in naming or in depend on calculating the isomerism. Hydrogen does not have any significance for naming the compound or for finding the isomerism of a certain molecule. Okay, so number of isomerism basically depend on the number of carbon. So suppose CH4 is given. How many isomer is possible? CH4 there are only one C. So if there is only one C, you can rearrange the carbon in that manner, no? There is no such arrangement by which you can say that is methane, and if we arrange that methane molecule like that manner, then there will be another molecule. There is no such possible way, no? So there is one carbon and you can rearrange one carbon in one manner only, no? Like C, and there is 4H with the C. That's it. You can't say like sir C can be arranged in that way and we will get another molecule. No. So we can say if there is only one carbon in alkane, then there will be no isomer. You can't rearrange the carbon in such a way so that you can get another configuration or another molecule. No. There is only one structure is possible, or we can say CH4 has no isomer. Okay. Chalo. If C2H6, in the case of C2H6, there is two carbon, and however you can write two carbon in a row, its name will be always, that there is two carbon, one, two carbon, eight, single bond is there, so N, ethane. Like if you write this manner, then also its name will be ethane only, one, two carbon, eight, single bond is there, and ethane. So it does not matter how you write two carbon in a row, its name will be always ethane. That means there will be no another structure. It also does not have any isomer. Chalo. Let us understand in the case of propane, C3H8. C3H8, 3 carbon. Now look, if 3 carbon can be written in this way, what will be its name? Its name will be 1, 2, 3. 3 carbon is there, prop, only single bond are there, so N. If 3 carbon, if anyone write 3 carbon in such a manner, what will be its name? Then also its name will be 1, 2, 3. 3 carbon is in a row. 3 carbon is in a row. So prop, only single bond is there, so N. It does not matter how you write 3 carbon. 3 carbon will be always in a row and its name will be always propane. So we can say with C3H8 also no isomer can be drawn or no isomer is possible. Okay. Chalo. Let us understand the case of C4H10, butane. Okay. 4 carbon. 4 carbon can be written in a row and its name will be 1, 2, 3, 4. 4 carbon, so but, only there is single bond, so N. Okay. If anyone write 4 carbon in such a manner, yeah, that is another molecule. Write its name. 1, 2, 3. In two position there is branch, and in branch there is only one carbon. So 2 methyl. 2 methyl, but the name of branch is over. In main chain there is 3 carbon. तो प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए N, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन. ओके. अच्छा, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं C4H10 के लिए हम लोगों को दो आइसोमर मिल रहा है. एक है ब्यूटेन और एक है 2 मिथाइल प्रोपेन. एक है ब्यूटेन और एक है 2 मिथाइल प्रोपेन. तो विथ C4H10 we will have two isomer. Okay. And these two are, if someone is asking you these two are what type of isomer, look, इसके मेन चेन पे 4 कार्बन है, इसके मेन चेन पे 3 कार्बन है. तो जब फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ एटॉम सेम है, मास सेम है, पर मेन चेन पे कार्बन नंबर डिफरेंट है, तो इस दोनों को हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर. व्हेन molecular formula will be same, number of atom will be same, mass will be same, but number of carbon in main chain will be different, then this type of molecule will be called chain isomer of each other. This type of molecule will be called chain isomer of each other. There is 4 carbon in its main chain and there is 3 carbon in its main chain, so these two molecule will be called chain isomer. Okay, chalo. Let us understand the concept of C5H12. If there is 5 carbon, 5 carbon can be written in a row and its name will be 5 carbon. So
1 2 3 4 5 पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। ओके सर, इसको इसे भी लिख, ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन पे और 2 नंबर पे एक ब्रांच लिख सकते हैं। ओके इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 2 नंबर पे ब्रांच है और ब्रांच पे एक ही कार्बन है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन पे है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। ओके और ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन पे 2 नंबर पे 2 ब्रांच, हाँ लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। 1 2 3, 2 नंबर पे ब्रांच पे एक बार कार्बन मिथाइल, 2 नंबर पे ब्रांच पे एक कार्बन मिथाइल, तो 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल, मेन चेन पे 3 कार्बन है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। ओके इसका कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं? पांचों कार्बन चेन पे है तो एन पेंटेन, इसके 4 कार्बन चेन पे है और 2 नंबर पे एक ब्रांच है तो आइसोपेंटेन, 2 नंबर पे ब्रांच है तो आइसो, 5 कार्बन है इन टोटल तो पेंटेन। ओके इसके 2 नंबर पे 2 ब्रांच है, 2 नंबर पे 2 ब्रांच है, 2 नंबर पे 2 ब्रांच है तो इसको बोलेंगे न्यू, कॉमन नेम न्यू, और टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन, न्यू पेंटेन, इसका आइसोपेंटेन, और ये नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। ओके तो C5H12 पे कितने सारे आइसोमर मिल सकते हैं हम लोगों को? 3, 3। ठीक है और ये दोनों क्या है? इसके मेन चेन पे 5 कार्बन है, इसके मेन चेन पे 4 कार्बन है तो ये दोनों चेन आइसोमर है। ये दोनों क्या है? इसके मेन चेन पे 4 कार्बन है, इसके मेन चेन पे 3 कार्बन है, चेन आइसोमर है। ये दोनों क्या है? इसके मेन चेन पे 5 कार्बन है, इसके मेन चेन पे 3 कार्बन है तो चेन आइसोमर है। ओके चलो फिर आते हैं C6H14, इसके कितने सारे आइसोमर मिल सकते हैं? पहले तो 6 कार्बन चेन पे हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सन। ओके 5 कार्बन चेन पे 2 नंबर पे ब्रांच है तो तुम लोग बोल सकते हो सर 2 नंबर पे ब्रांच है तो इसका कॉमन नाम है आइसो, टोटल 6 कार्बन है, हेक्सन, आइसो हेक्सन। ओके 4 कार्बन चेन पे 2 नंबर पे 2 ब्रांच, सर 2 नंबर पे 2 ब्रांच है तो न्यू, 6 कार्बन है इन टोटल तो हेक्सन, न्यू हेक्सन। ओके डेफिनेटली। और क्या हो सकता है? 4 कार्बन चेन पे 2 नंबर पे एक ब्रांच, 3 नंबर पे एक ब्रांच, 1 2 3 4, 2 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, isn't it? 1 2 3 4, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और क्या हो सकता है? और 4 कार्बन चेन पे 2 नंबर पे लिख लिया, 2 नंबर पे ब्रांच, 2 पे एक ब्रांच, 4 पे एक ब्रांच, वो 2 पे एक ब्रांच, 3 पे एक ब्रांच, वो भी लिख लिया। अच्छा 5 कार्बन चेन पे 3 नंबर पे ब्रांच, 3 नंबर पे ब्रांच, इसका नाम क्या होगा? इसका कॉमन नेम तो नहीं होगा पर आयोपेक नेम जरूर होगा। 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो कितने सारे आइसोमर हम लोगों को मिल रहा है? 1 2 3 4 5, 5 आइसोमर मिल रहा है, 5 आइसोमर मिल रहा है, isn't it? 5 आइसोमर मिल रहा है। तो ये दोनों क्या है? इसके मेन चेन पे 6 कार्बन है, इसके मेन चेन पे 5 कार्बन है तो ये दोनों चेन आइसोमर है। इसके मेन चेन पे 5 कार्बन है, इसके मेन चेन पे 4 कार्बन है तो चेन आइसोमर है। इसके मेन चेन पे 5 कार्बन है, इसके मेन चेन में भी 5 कार्बन है पर इसके ब्रांच 2 नंबर पे है, इसके ब्रांच 3 नंबर पे है तो दिस टू आर पोजिशनल आइसोमर। इसके मेन चेन में भी 5 कार्बन है, इसके मेन चेन में भी 5 कार्बन है, इसके ब्रांच 2 नंबर पे है, इसके ब्रांच 3 नंबर पे है तो दिस टू आर पोजिशनल आइसोमर। ठीक है इसके मेन चेन पे 4 कार्बन है, इसके मेन चेन पे भी 4 कार्बन है, इसके ब्रांच 2 और 3 पे है, इसके 2 ब्रांच 2 पे है तो दिस टू आर पोजिशनल आइसोमर। इसके मेन चेन पे 6 कार्बन है, इसके मेन चेन पे 5 कार्बन है, चेन आइसोमर। इसके मेन चेन पे 6 कार्बन है, इसके मेन चेन पे 4 कार्बन है, चेन आइसोमर। इसके मेन चेन पे 6 कार्बन है, इसके मेन चेन पे 4 कार्बन है, चेन आइसोमर। ठीक है ओके तो 5 आइसोमर है, 5 आइसोमर है। चलो C7H16 आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो,
आई थिंक डेफिनेटली कर सकते हो। चलो आंसर आएगा 9। आंसर आएगा 9। सर आप लोग को कैसे पता है? करते करते तुम लोग करोगे तो तुम लोगों को भी पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम करोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, वो नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा बस इतना ही है, ठीक है ना। जो करेगा उसको करते करते पता चल ही जाएगा, ठीक है। जो लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अगर कोई भी रेयर सा क्वेश्चन आ जाए जो उसने कभी नहीं किया, उस कॉन्सेप्ट को वो कभी नहीं किया घर पे एग्जाम पे जाने से पहले, अगर वो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तो वो भी क्वेश्चन वो आंसर कर सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसे ही एक चीज है, तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनकॉमन होगा या फिर सबके लिए अनकॉमन होगा, जो सबका छूटेगा वो भी तुम्हें आ जाएगा। तो चलो C7H16 कितना आइसोमर हो सकता है? 9 आइसोमर हो सकता है। चलो C8H18 इसका कितना आइसोमर हो सकता है? 18 आइसोमर हो सकता है। C9H20 ड्रॉ करके देखना, 18 आइसोमर हो सकता है। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं करके दूंगा। ऐसा मत करना कि ड्रॉ करते करते दो स्ट्रक्चर को गिन लिया, मतलब एक ही स्ट्रक्चर को 2 बार ड्रॉ कर लिया और दोनों की काउंट कर रहे हो। ऐसा मत करना, ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही स्ट्रक्चर को 2-3 बार ड्रॉ करते हैं और एक ही स्ट्रक्चर को 2-3 बार काउंट करते हैं। ऐसा मत करना। और बहुत सारे बच्चे ऐसा भी होता है जो 2-3 स्ट्रक्चर को स्किप कर जाते हैं। ऐसा बहुत नॉर्मल है और पहले पहले ऐसा होता ही है, ठीक है ना। कोई जन्म से तो ये सब सीख के नहीं आता है, तो तुम पहले करोगे तो जरूर गलतियां तो होगी। एंड एज यू नो, मोर यू मेक्स मिस्टेक मोर यू लर्न। तो C7H16 पे कितना आइसोमर हो सकता है? 9 आइसोमर हो सकता है। C8H18 पे कितना आइसोमर हो सकता है? 18 आइसोमर हो सकता है। C9H20 पे कितना आइसोमर हो सकता है? 35। इतना सारा आइसोमर ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है, एग्जाम हॉल पे तो पॉसिबल है ही नहीं। तुम्हें अगर आंसर पता नहीं है तो तुम एग्जाम हॉल पे जाके 35 आइसोमर ड्रॉ करके निकाल नहीं पाओगे। और ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा 30, 35, 40 एंड 42। तो इतने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना एग्जाम हॉल पे, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर 2-4 गलत आ गया, 2-4 गलत हो गया तो पूरा आंसर चला जाएगा, 5 मार्क्स खत्म, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीजें याद रखना जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ डाटा याद रख लो, ठीक है। C9H20 पे कितना आइसोमर हो सकता है, कितना स्ट्रक्चर हो सकता है? 35। और C10H22 डेकन पे कितना स्ट्रक्चर हो सकता है? 75। 75 75, ठीक है। चलो 75 स्ट्रक्चर हो सकता है, 75 स्ट्रक्चर। चलो अब अगर मैं बोलता हूं CH3 के साथ कोई एक ग्रुप है, उसका कितना आइसोमर हो सकता है? CH3 के साथ मान लो कोई भी ग्रुप है, Cl है, Br है, OH है, Cn है, कोई भी ग्रुप है। CH3 के साथ कोई भी ग्रुप है तो उसका कोई आइसोमर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो CH3 के साथ जो भी कनेक्ट हो, इसका नाम हमेशा ऐसे ही होगा ना, 1 क्लोरोमीथेन। इसको तुम और कैसे लिख सकते हो, जैसे कि उसका नाम कोई अलग सा आ जाए या फिर अलग सा तुम्हें कोई स्ट्रक्चर मिल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल टू make any other configuration or any other name or any other structure by rearrange the atom C and Cl. Here Cl is given, it's not necessary Cl will be given in all the case. Here can be OH, here can be Br, here can be Cn, anything can be there, ठीक है। तो CH3 के साथ कोई भी एटम जुड़ा हो या फिर CH3 के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हो तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। तो if there is something, any atom or any group connected to CH3, there will be no isomer. There will be no isomer. Okay. Let us understand C2H5. If there is any atom or any group is connected with C2H5, how many isomer are possible? Okay, look. Suppose with C2H5, Br is connected. What will be its name? So it will be very easy. 1, 2, 1 bromoethane. Okay. Let's consider Br is connected with that atom, with that carbon atom. Then also its name will be 1, 2, 1 bromoethane. That means it does not matter with which atom, with which carbon atom Br is connected.
its name will be always 1-bromoethyl. That means if any atom or any group is connected with C2H5, then also there will be no isomer. Okay, great. Let us understand if any atom or any group is connected with C3H7, then how many isomer is possible? Suppose with C3H7 OH is connected. How many isomer is possible? What will be its name? 1, 2, 3. प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है तो N एक नंबर कार्बन पे OH है तो 1 ऑल. एंड इफ द मॉलिक्यूल लुक लाइक दैट, 3 कार्बन चेन पे है, 2 नंबर कार्बन पे OH है, 1, 2, 3. प्रोप 3 कार्बन है, प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है, N 2 नंबर पे OH है, 2 ऑल. These two are different structure. So if any atom or any group is connected with C3H7, then how many isomer is possible? 2. Achha, if anyone asks, sir, what if OH is connected with that atom? Then it will be same, no? Look, if that happens, then this structure and this structure are same. 1, 2, 3, 3 कार्बन, प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है तो N एक नंबर पे OH है, 1 ऑल. ये दोनों सेम है. So if any atom or any group is connected with C3H7, then how many isomer is possible? 2. Okay. Chalo. Now let us understand the concept of C4H9. If any atom or any group is connected with C4H9, then how many isomer will be possible? 4 कार्बन चेन पे HCl. इसका नाम क्या है? 1, 2, 3, 4. 1 chloro. Suppose here Cl is connected. It's not necessary always Cl will be connected. Anything can be connected. Cl, Br, OH, anything can be connected. Okay. So here Cl is connected. So what will be its name? 1 chloro. 4 carbon is there. But सारे सिंगल बॉन्ड है तो N 1 chlorobutane. Okay. Here if Cl is connected with second carbon atom, then what will be its name? 1, 2, 3, 4. 2 पोजीशन पे Cl है, 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N 2 क्लोरोब्यूटेन. ओके. और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? 3 कार्बन चेन पे 2 नंबर पे ब्रांच है, 2 नंबर पे ब्रांच पे 1 कार्बन है और 1 नंबर पे Cl है. ऐसा भी हो सकता है. इसका नाम क्या होगा? 1, 2, 3. 2 नंबर पे ब्रांच है, 2 मिथाइल, एक पोजीशन पे Cl है, 1 क्लोरो, मेन चेन पे 3 कार्बन है, प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है, N प्रोपेन. और एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, 3 कार्बन चेन पे 2 नंबर पे ब्रांच पे 1 कार्बन है और 2 नंबर पे Cl है. ऐसा भी हो सकता है. इसका नाम क्या होगा? 1, 2, 3. 2 नंबर पे मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 नंबर पे Cl, 2 क्लोरो, चेन पे 3 कार्बन है, प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है, N. So how many structure are possible? Is there any other structure possible? No. और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नहीं है. तो C4H9 के साथ कोई भी एटम जुड़ा हो या फिर C4H9 के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हो तो कितने सारे आइसोमर पॉसिबल है? 4. 4 carbon in a row and Cl or that group, which group is in the molecule, that group is connected with number 1 carbon atom. Okay. 4 carbon in a row and that group or that atom which is present in the molecule is connected with the second carbon atom. Another structure. 3 carbon in main chain, 1 carbon is in branch with second carbon atom and that atom is in 1 number carbon. Okay. And another structure is possible, 3 carbon in main chain, in 2 number carbon there is branch and that atom or that group is connected with second atom in main chain. Another structure. So if any atom or any group is connected with C4H9, then how many structure is possible? 4. How many structure is possible? 4. Okay. Let us understand the concept of C5H11. If any atom or any group is connected with C5H11, then how many structure is possible? Chalo, let us see. 5 carbon is in chain and that atom is connected with 1 number carbon atom. Okay, 1 structure.
1 2 3 4 5 5 कार्बन चेन पे, और वो जो एटम है या फिर वो जो ग्रुप है वो एक नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक स्ट्रक्चर। ओके, ऐसा भी हो सकता है 5 कार्बन चेन पे है और वो जो एटम है या फिर वो जो ग्रुप है वो 2 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, ऐसा भी हो सकता है। और एक हो सकता है 5 कार्बन चेन पे है और वो जो एटम है या फिर वो जो ग्रुप है वो 3 नंबर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चेन पे है और वो जो एटम है या फिर वो जो ग्रुप है वो 3 नंबर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4 कार्बन चेन पे है, 2 नंबर पे ब्रांच है एक कार्बन का, और वो जो एटम है वो एक नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4 कार्बन चेन पे है, 2 नंबर पे ब्रांच है और वो जो एटम है या फिर वो जो ग्रुप है वो 2 नंबर कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 कार्बन चेन पे है, 2 नंबर पे ब्रांच है और वो जो एटम है या फिर वो जो ग्रुप है वो 2 नंबर कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। ओके, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है, और 4 कार्बन चेन पे है, 2 नंबर एटम पे, 2 नंबर कार्बन एटम पे ब्रांच है। ठीक है, और 3 नंबर एटम पे वो जो एटम है, वो जो एटम है या फिर वो जो ग्रुप है जो मॉलिक्यूल पे है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 कार्बन चेन पे, 2 नंबर पे ब्रांच, और दैट विच और वट एवर द एटम और ग्रुप में बी दैट इज कनेक्टेड विथ 3rd नंबर कार्बन एटम। ओके, और एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कितना मिला, 1 2 3 4 5 6। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 कार्बन चेन पे, 2 नंबर कार्बन के साथ ब्रांच पे एक कार्बन है, और दैट एटम और दैट ग्रुप कनेक्टेड इन द मॉलिक्यूल मे बी लाई इन द 4th कार्बन, 4th कार्बन, 1 2 3 4, 4th कार्बन। 4 कार्बन चेन पे, 2 नंबर कार्बन पे ब्रांच, 2 नंबर कार्बन पे ब्रांच है, ब्रांच पे एक कार्बन है और वो जो एटम है या फिर वो जो ग्रुप है वो 4th कार्बन के साथ कनेक्टेड है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है, थिंक। और क्या हो सकता है, 3 कार्बन चेन पे, 2 नंबर पे 2 ब्रांच है और दैट एटम और दैट ग्रुप which is connected with the molecule is in 1st कार्बन, ऐसा भी हो सकता है। देखो, 3 कार्बन चेन पे, 2 नंबर पे 2 ब्रांच है और दैट ग्रुप और दैट एटम present in the molecule may be connected with the 1st carbon atom. That can be also possible. So how many structure are possible? 1 2 3 4 5 6 7 8. So if any group or any atom connected with C5H11, then how many structure are possible? 8. 8 8 8. Okay, how many structure are possible? 8. ठीक है, तो चलो एल्केन का जो आइसोमरिज्म हो सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो हो सकता है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। और एल्केन का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे 2 आइसोमर इंक्लूड होता है, वो एक है चेन आइसोमर और एक है पोजिशन आइसोमर। एक है चेन आइसोमर और एक है पोजिशनल आइसोमर। दोनों हमने अच्छे से समझ लिया है और अच्छे से कवर कर लिया है जेईई मेंस एंड एडवांस के प्रोस्पेक्टिव पे। तो जितने सारे मैंने पॉइंट बताया है वो लिए आईआईटी जेईई का है और बहुत बार जा चुका है और तुम्हारे टाइम पे भी पूछा, तो इतने तक अच्छे से कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो मैं अपना नंबर कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट्स इन एनीथिंग, बाय टेक्सटिंग मी इन व्हाट्सएप
and see you guys in next session. Tata, take care, goodbye, and study hard. Love you all.